हेलो गाइस, मेरा नाम है नीतू। वेलकम टू आयरा स्टडी सेंटर। सो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड till question number 5 or exercise 8.1. In today's lecture we will start from question number 6. So let's see what does the question says. It says if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Now in this question you understand there are two acute angles. It means these two acute angles do not belong to the same triangle, same right angle triangle. You know that the trigonometric functions are always applied on right angle triangle. But here the triangles are different because cos A cannot be cos B for the same triangle. So what we have to do is we have to draw two right angle triangles. अब फर्स्ट ट्रायंगल में जैसे cos A लिखा है तो हमारा बेस एंगल एक्यूट एंगल क्या होगा A, दूसरे वाले के लिए होगा B. नाउ द थिंग इज अदर वर्टिसेस आर नॉट गिवन, सो लेट द वर्टिस फर्स्ट लाइक मैं आई एम इसको एज्यूम कर रही हूँ MN और दूसरे के लिए आई एम एज्यूमिंग टू बी PQ. सो आई हैव एज्यूम्ड माय ट्रायंगल्स. अब उसने दिया क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, यानी कि इन दोनों एंगल्स के फंक्शन आपस में इक्वल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है. अब अगर इट मींस अब ये cos A अगर है तो व्हाट लाइक cos का फंक्शन क्या होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बेस क्या बना, MA इज बेस, हाइपोटेन्यूज इज NA. सो यू नो curly brown here, so it is and for the other triangle it will be, what will be your base will be PB and what will be your hypotenuse will be QB. Done. Okay, now they have told that the functions are equal. Done. Next step will be we will assume let these functions, let these ratios be equal to certain things. So we will assume okay, let the sides, whatever be the sides we have got in ratio, let that ratio be equal to K. K is to 1. See, हमारे को यहाँ पर कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, जैसे 2:3 या 5:7, तो we have to assume it. I'm not assuming it as M is to N. I'm assuming it to be as K is to 1. So I can write it to be K also. Okay. So that is the thing. Now for the next step, we will try, now we will do by alternando. Alternando एक रूल है आपका रेशियोज के ऊपर आता है, जिसमें हम फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर और सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर वी विल एक्सचेंज देयर प्लेसेस. सो इट विल टर्न आउट टू बी MA by PB is equal to NA by QB equal to K. Write this equation as 1. Now what are we not given? We are not given the third side. अगर मेरे को थर्ड साइड NM निकालनी है तो थर्ड साइड के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन फर्स्ट ट्राइंगल NM, तो NM की वैल्यू क्या होगी, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस base square. You know that square root of hypotenuse square minus base square, so it will be NA square minus MA square. Done for the first triangle. And for the second triangle it will be QP is equal to QB square minus PB square. Done. So as the two sides are already written in ratio, let's take the ratio of our third side also. तो जब हमने थर्ड साइड के लिए रेशियो में लिखा, so I will write it as NM divide by QP. वैल्यूज डालो.
नाउ यू जस्ट लुक एट फ्रॉम योर इक्वेशन 1, अगर मेरे को QB को रिप्लेस करना है, नाउ यू लुक एट दिस रेशियो Na/QB, अगर मुझे QB को रिप्लेस करना है I और से Na को रिप्लेस करना है, Na कैन बी रिटन एज K इंटू QB, ठीक है। यहां पर Na का स्क्वायर है, सो आई कैन राइट इट एज K स्क्वायर इंटू QB स्क्वायर, माइनस सिमिलरली फ्रॉम द सेम इक्वेशन अब आप Ma को देखो, Ma को यू कैन रिप्लेस एज K इंटू PB, सो यू कैन राइट इट एज K स्क्वायर इंटू PB स्क्वायर, PB स्क्वायर डिवाइड बाय सेम डिनोमिनेटर। ओके, यहां पर न्यूमरेटर में वी कैन टेक K स्क्वायर आउट, देखो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो K क्या होगा, K विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट एंड द अदर थिंग्स विल बी लेफ्ट एज so you can strike out numerator and denominator, you can cancel them. So what we have come to know, we have come to know that the third side का जो रेशियो आया वो भी इक्वल टू K है, जो कि हमने फर्स्ट जो दो साइड्स की रेशियो थी उसको हमने एज्यूम किया था K, तो हमारा जो थर्ड साइड का रेशियो आया दैट हैज आल्सो कम आउट टू बी K. So let this be equation 2. So from equation 1 and 2, all the three sides are in the same ratio. So you can say now from the similar triangles we know कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं और जो उनके जो एंगल्स होते हैं दे आर कांस्टेंट एंड इक्वल. सो यू हैव टू मेंशन हियर फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स वी नो, या फिर यू से कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैव triangles have sides in same ratio and angles are constant, यानी कि एंगल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, एंगल्स आर कांस्टेंट एंड इक्वल, कांस्टेंट एंड इक्वल. So, if the two similar triangles are equal, their angles are equal, what you can say? You can say therefore angle A is equal to angle B. Now if you will go through your textbook, you will find that example number 2 is also on the same base, but there they have taken a sine function. So example number 2 you can also solve on the same basis and it will help you. Thank you. So you please note it down. थीटा, cot थीटा आपको मालूम है कि ये इनवर्स होता है टेंजेंट का. टेंजेंट इज, you know now from the previous video I told you that tangent is for that the trick line is turn permanently black. तो टेंजेंट किसका रिलेशन होगा? इट इज अ फंक्शन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस. तो कॉट किसका रिलेशन होगा? न्यूमरेटर विल टर्न आउट टू बी b and denominator will turn out to be p. तो जो cot theta होगा it will be written as b here stands for base, p for a perpendicular. So let's make certain triangle. अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी acute angle होता है, जो हम यहाँ पर एंगल लिखेंगे, जो एक्यूट एंगल आएगा इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पर एक थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी कुछ नहीं दिया. सो वी कैन अज्यूम आवर ट्राइंगल
टू बी से ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एज ABC, और ये जो एंगल है इसको आप लिखोगे थीटा, एक्यूट एंगल को. इफ आई विल अप्लाई दैट फंक्शन ऑन दिस ट्राइंगल, तो दिस इज ratio is equal to 7/8 given. So your base value will come out to be 7 and perpendicular will come out to be 8. So what you have to do? You have to find out the third side. Now you apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem कहता है कि hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square. So this will turn out to be √1. So let's start with our first part. फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. अगर आप इसको क्लोजली लुक करो तो इट रिजेंबल्स योर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई कैन रीराइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अब नीचे भी आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिलेशन लगा सकते हो, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. डन. ओके, अब यहां पर एक और बताना चाहूंगी बच्चों आपको बात. ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं, इसको दो तरीके हैं लिखने के. आइदर आई कैन राइट इट लाइक दिस और आई कैन राइट साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. बेशक मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है. तो कभी भी कंफ्यूज मत करना, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा मीन्स सेम. ओके, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम साइन 2 थीटा. So this we will discuss in some other question at some other place. So for the time being, but you just remember that this thing do not resemble this thing. This has a different meaning. So for the time being, I am erasing this thing. Okay. Now you apply sine function. अगर मैं इसी triangle में sine function लगाऊंगी तो आपका आएगा some people have from the trig line. So people here is perpendicular, have here is hypotenuse. तो perpendicular आपका क्या है? 8. Hypotenuse आपका क्या है? √113. So I can write it as divide by cos. Cos के लिए ट्रिक लाइन क्या थी? Curly brown here. Brown here is base and here is hypotenuse. So which is your base? Base is BC जिसकी वैल्यू है 7 and hypotenuse is AC. So let's do it solve. अब यहाँ पर क्या होगा? न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 64. √113 का स्क्वायर लोगे तो सिर्फ 113 बचेगा. अब सिमिलरली नीचे क्या होगा? 7 का स्क्वायर लोगे तो इट विल बी 49 और √113 का स्क्वायर लोगे तो इट विल बी 113. Let's take the LCM of numerator, then LCM of denominator, and then उसके बाद भी हम न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख के डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो let's solve it. So how you will write? You will write it as 113 minus 64 divide by 113 divide by 113. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट इट एज 49 by 113. न्यूमरेटर को एज सच लिख दीजिए और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लो. सो 113 विल गो अप एंड 64 will come down. 113 will get cancelled. So final solution is 49 by 64. Done. Let's do the second part. Second part is quite easy. Second part यहाँ पर बोल रहा है cot square theta. अब cot theta की वैल्यू दी है 7/8.
तो इसका जस्ट हम स्क्वायर करेंगे, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट इट एज 49/64. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू दिस, चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर. यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको दो साइड्स दी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड दी है, एक राइट हैंड साइड दी है. तो आपने इन दोनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है एंड देन यू हैव टू सी वेदर द टू साइड्स आर इक्वल, उनका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो इक्वल है या नहीं है. सो लेट्स ट्राई इट. अब यहाँ पर 3 cot A दिया है. अगर आपके पास में 3 cot A है तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो आप इसकी वैल्यू, इसकी रेशियो कैसे लिखोगे? यू विल राइट इट एज cot A इज इक्वल टू 4/3. cot इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द इनवर्स ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है? टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि P/B. तो cot क्या होगा? इट विल बी B/P. B here is base, P here is perpendicular. So let's make our right angle triangle. A means हमारा जो acute angle है वो A हो जाएगा. Other vertices you can name by your own choice, B और C. Done. Base आपका 4 हो गया, perpendicular आपका 3 हो गया. So what the next step will be? You have to fill this triangle by finding its hypotenuse. AC की वैल्यू क्या होगी? AC की वैल्यू होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. सो AC की वैल्यू आएगी 5. ओके, डन. नाउ लेट्स डू फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं. 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस tangent sphere A. Okay, now apply trick line, turn permanently black. So it is the relationship between BC divided by AB, यानी कि 3/4. So you can say it. डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं. न्यूमरेटर वाली रेशियो एज सच लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर में रेशियो आती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो 16 विल गो अप. इसका मैं एलसीएम लूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 16 प्लस 9. 16 में से 9 सबट्रैक्ट किए, यू विल गेट इट एज 7 डिवाइड बाय 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 16 और 9 ऐड किए, यू विल गेट इट एज 25. So this will be 7/25. Now find out right hand side. Right hand side कहता है cos square A minus sin square A. ट्रिक लाइन में चले जाओ. cos is a relationship between curly brown here. तो brown यहाँ पर बेस आया 4, here आपके 5 आए क्योंकि आपका hypotenuse is 5, तो it will be 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन के लिए ट्रिक लाइन क्या है? सम पीपल हैव, तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपका क्या है? 3 और हाइपोटेन्यूज है 5. तो दिस विल टर्न आउट टू बी, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो एलसीएम हो गया 25. सो न्यूमरेटर में आ गया 16 माइनस 9, इट विल टर्न आउट टू बी 7/25. अब आप देख रहे हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों की इक्वल वैल्यू आई है. देयरफॉर आई कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्लीज कॉपी दिस थिंग. बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा. थैंक यू फॉर दिस क्लास. सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास.